हे गाइस, आई एम अन्विता द्विवेदी फ्रॉम टारगेट फॉर आईक्यू। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे आपको जो भी वीडियोस हम पढ़ाते हैं उनके नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और इसके अलावा हमारे कुछ पेड कोर्सेज हैं जो कि टेलीग्राम ग्रुप पे चलते हैं और ये विभिन्न राज्यों की जुडिशरी एग्जामिनेशन से रिलेटेड मटेरियल अवेलेबल कराते हैं। इस पे प्री और मेंस दोनों का मटेरियल अवेलेबल है। Today I have come up with some multiple choice questions based on preamble, and these questions have been asked in previous year's judiciary examinations. So let's start with these questions. I hope that this will guide you through. So first question here is, which part of the constitution reflects the mind and ideals of the framers of the constitution? आज मैं ये क्वेश्चंस हिंदी में भी पढ़ूंगी क्योंकि कुछ लोगों ने पिछले वीडियोस में बोला था कि उन्हें हिंदी में भी क्वेश्चंस चाहिए, तो मैं इनको हिंदी में भी आज पढ़ रही हूँ। यहाँ पे पहला प्रश्न ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स के माइंड को, उनकी सोच को, उनके द्वारा स्थापित किए गए आइडियल्स को दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन हियर इज प्रियम्बल, प्रस्तावना। सेकेंड ऑप्शन हियर इज फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। थर्ड ऑप्शन हियर इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व। एंड फोर्थ ऑप्शन हियर इज नन ऑफ दीज। सो as we can see that fundamental rights and directive principles of state policy are basically the ways, or you can say means, to achieve those ideals which have already been told by the constitution framers. So here it means that ये ways और means बताते हैं, ये उन ideals को और उन objectives को प्राप्त करने का तरीका बताते हैं। Basically these are not those ideals. These fundamental rights and directive principles of state policy do not reflect those ideals. So here the correct answer is the preamble. A option is the right here. And as I have already mentioned in the previous video, in case of Beriberi, that it has been held that preamble is the key to open the mind of the constitution makers. So here from this judgment it is also clear that preamble is the part which reflects the ideals or objectives of the framers of the constitution. Now moving on to second question. Second question here says that what are the four objectives mentioned in the preamble? कौन से ऐसे चार objectives हैं जो कि हमारा preamble mention करता है? First option here is justice, liberty, equality and fraternity. Second option is social, secular, democratic republic. Third option liberty, equality, fraternity and secular. Fourth option here is justice, liberty, federal, democratic. अब जो यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं, जो सेकेंड ऑप्शन है सोशल, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, दीज आर बेसिकली द कीवर्ड्स ऑफ द प्रियम्बल। ये आपके टाइप ऑफ गवर्नमेंट को बताते हैं, टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बताते हैं कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन या आपकी गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करेगी, आपका एडमिनिस्ट्रेशन किस टाइप का होगा। These are not the objectives which are set to be achieved. These are basically the way of administration by the government. So this option is wrong obviously. So now coming to the third option, liberty, equality, fraternity and secular. Since secular word has been added here, आपने देखा तो ये जो secular word है ये already जो key words हैं preamble के उसमें भी है, तो that means कि ये भी option incorrect हो गया। फिर आपका fourth option है justice, liberty, federal and democratic, इसमें democracy आ गया। Democracy is also the type of government. It shows it is also one of the keywords and it shows how the exactly the government of country runs or which type of government is country having. तो यहाँ पे डेमोक्रेसी भी डेमोक्रेसी ऐड होने की वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो हमारे पास बचता है ए ऑप्शन विच इज़ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। So these are the four objectives mentioned in the preamble. I have already mentioned these objectives in the notes in previous video, so you can go through it. So now our third question, what is our third question? Third question says that preamble of the constitution declares India as, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इंडिया को किस तरीके से डिक्लेयर करता है या फिर इंडियन स्टेट को किस टाइप का स्टेट बताता है।
तो बेसिकली यहाँ पर अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपसे कीवर्ड्स पूछे गए हैं कि इंडियन स्टेट किस टाइप का है या किस टाइप की गवर्नमेंट यहाँ पे होती है, यहाँ पर उन कीवर्ड्स की बात की गई है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सेकंड ऑप्शन इज सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, थर्ड ऑप्शन इज सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। तो ये जो ए ऑप्शन है ये अधूरा है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें सिर्फ 3 ही कीवर्ड्स दिए गए हैं और टोटल में हमारे पास 5 कीवर्ड्स हैं, और इसीलिए यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सो हमारे पास सेकंड ऑप्शन बचता है, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हियर। Constitution of India या preamble of Constitution of India declares it a sovereign socialist secular democratic republic. Now our fourth question says which of the following statement is incorrect? इनमें से कौन सा statement incorrect है यानी कि गलत है? First option here is the preamble is a key to understand the mind of constitutional makers. The preamble embodies the ideals, hopes, faith and aspiration of people. The preamble embodies the intention of the founding fathers and objective of the constitution. The preamble of the constitution has no importance. It is no more than an introduction to the constitution. So now हियर फर्स्ट ऑप्शन हमें पता है कि यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमें पता है कि सही है, इसलिए सही है कि अभी मैंने आपको बेरबेरी केस बताया, ये एक तरीके से बेरबेरी केस का जजमेंट है, तो ये दिस इज़ द राइट स्टेटमेंट। इन दिस स्टेटमेंट देयर इज़ नॉट अ सिंगल थिंग विच इज़ इनकरेक्ट, और हमें ये पता लगाना है कि क्या इनकरेक्ट है। फिर नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन, द प्रियम्बल एम्बॉडीज द आइडियाज़, होप, फेथ एंड एस्पिरेशन ऑफ पीपल। तो ऑब्वियसली प्रियम्बल की जो पावर है वो हमेशा, प्रियम्बल स्टार्ट भी यही से होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये हमेशा जो लोगों की जो एस्पिरेशंस होती हैं या लोग जो चाहते हैं, लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं अपनी कंट्री से, उन प्रिंसिपल्स को दर्शाता है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर थर्ड ऑप्शन इज द प्रियम्बल एम्बॉडीज द इंटेंशन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें पता है कि प्रियम्बल हम ने 4 ऑब्जेक्टिव्स बताए हुए हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अचीव करना चाहता है। इसके अलावा प्रियम्बल फाउंडिंग फादर्स की इंटेंशन को दर्शाता है, ये कई केसेस में भी हेल्ड हो चुका है, और जो फर्स्ट पॉइंट है ये एक तरीके से थर्ड पॉइंट उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, तो यानी कि ये भी सही स्टेटमेंट है। तो अब हमारे पास फोर्थ पॉइंट बचता है। सो फोर्थ पॉइंट कहता है कि द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नो इम्पॉर्टेंस। इट इज़ कम्प्लीटली इनकरेक्ट, क्योंकि केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में भी ये चीज़ हेल्ड हो चुकी है कि प्रियम्बल इज़ ऑफ एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंस एंड इट शोज़ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी इंटरप्रिटेड इन द ग्रैंड विजन ऑफ प्रियम्बल। तो दैट मीन्स कि जो प्रियम्बल है उसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा अटैच की गई है, एंड ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो लास्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, तो हम दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर फिफ्थ क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बोरोड द आइडियल्स ऑफ प्रियम्बल फ्रॉम दी। किस कॉन्स्टिट्यूशन से, विश्व के किस संविधान से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रियम्बल का आइडिया बोरो किया है? तो फर्स्ट ऑप्शन हियर इज इटालियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। तो यहाँ पे पहले के जो 3 ऑप्शन हैं वो गलत हैं और फोर्थ ऑप्शन सही ऑप्शन है। ये एकदम स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ भी नहीं दिमाग लगाना है, यू जस्ट हैव टू मग इट अप। सो फोर्थ ऑप्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए इज द राइट आंसर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बोरोड द आइडियाज ऑफ प्रियम्बल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। नाउ sixth question, in case there is a conflict between the preamble and other provisions of the constitution, which will prevail over the other? Preamble will prevail, second option other provisions will prevail, third option both will go side by side, and fourth option interpretation of the Supreme Court will prevail. यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर प्रियम्बल में या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के जो बाकी नियम हैं, बाकी प्रोविजंस हैं, उनमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो कौन सा
पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीवेल करेगा, यानी कि प्रियम्बल सुप्रीम होगा, सुप्रीम माना जाएगा, या बाकी जो प्रोविजंस हैं उनको सुप्रीमेसी दी जाएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है प्रियम्बल विल प्रीवेल। तो जैसा कि आपने केशव नंदा भारती जजमेंट से और अदर इंपॉर्टेंट जजमेंट से देखा होगा, प्रियम्बल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इससे बेसिकली इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन के जो बाकी प्रोविजंस हैं उनको इंटरप्रेट करने के लिए एज अ गाइडिंग लाइट यूज़ किया जाता है। लेकिन प्रियम्बल कभी भी एनफोर्सिएबल नहीं हो सकता है, हम प्रियम्बल एनफोर्स नहीं करा सकते। तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट ऑप्शन है प्रियम्बल विल प्रीवेल, ये गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन कहता है अदर प्रोविजंस विल प्रीवेल, तो ऑब्वियसली जो अदर प्रोविजंस हैं वो इनैक्टिंग प्रोविजंस हैं, वो एनफोर्सिएबल हैं, तो जो अदर प्रोविजंस हैं वो प्रीवेल करेंगे। बोथ विल गो साइड बाई साइड, ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। And interpretation of the Supreme Court will prevail. This option is also incorrect because preamble can never be enforceable. It is merely a guiding provisions. Now, seventh question. So answer here is B. Now, seventh question. Seventh question says that which of the following is correct about the preamble to the Constitution of India? ये नीचे जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंडिया का जो प्रियम्बल है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन हियर इज इट वाज अडॉप्टेड आफ्टर अडॉप्शन ऑफ ऑपरेटिव आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड ऑप्शन हियर इज इट एनविसेजेस दैट ऑल सिटीजन्स हैव फंडामेंटल राइट्स। Third option here is it seeks to secure good livelihood to all, and fourth option here is it is not a part of the constitution. तो अब फोर्थ पार्ट जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे वो अपने आप गलत हो जाएगा, ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट जानना है। इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि केशव नंदा भारती में ऑलरेडी हेल्ड हो चुका है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन हियर इज इट सीक्स टू सिक्योर गुड लाइवलीहुड टू ऑल, तो यहाँ पे लाइवलीहुड की बात नहीं है, प्रियम्बल एक ऑब्जेक्टिव सेट करता है फॉर ऑल ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ ये एक प्रोविजन की बात नहीं है कि ये सिर्फ लाइवलीहुड सिक्योर करता है, दिस इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बेसिकली। तो थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। फिर सेकेंड ऑप्शन में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, तो फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से दिया हुआ है, तो ये प्रियम्बल में नहीं दिया गए हैं। जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं ये प्रियम्बल में बिल्कुल भी मेंशन नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन बचता है इट वॉज अडॉप्टेड आफ्टर अडॉप्शन ऑफ ऑपरेटिव आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सही है। हमारा जो प्रियम्बल है वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। इनैक्ट 26 जनवरी 1950 को हुआ था, बट कुछ प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे थे जो कि 26 नवंबर 1949 को ही ऑपरेटिव हो गए थे, यानी कि इनैक्ट हो गए थे। तो जब वो प्रोविजंस इनैक्ट हो गए उसके बाद ही प्रियम्बल बेसिकली अडॉप्ट होगा, क्योंकि जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक हम प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन के कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Eighth question here says that by which amendment the words secular and socialist were included in the preamble. First option here is First Amendment, second option 66th Amendment, third option 42nd Amendment, and fourth option here is 44th Amendment. तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। 42nd Amendment 1976 एमरजेंसी के टाइम पे ये अमेंडमेंट लाया गया था, और इस अमेंडमेंट के थ्रू 3 वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। दिस इज़ द थर्ड वर्ड जो कि इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, बट हमें याद रखना है क्योंकि किसी भी तरीके के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इंटीग्रिटी हैज़ ऑल्सो बीन एडेड। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है सी वो करेक्ट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट यूज्ड विद द वर्ड लिबर्टी इन द प्रियम्बल। अब लिबर्टी वर्ड्स के साथ कौन से वर्ड नहीं यूज़ किए गए हैं। लिबर्टी हमें पता है कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स है प्रियम्बल का के जो 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें से लिबर्टी एक है, और लिबर्टी के आगे एक एक्सप्रेशन दी हुई है प्रियम्बल में, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन,
वर्शिप, बिलीफ एंड फेथ। तो यहाँ पे वर्शिप वर्ड है लिबर्टी के साथ, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन है, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड बिलीव, तो फेथ है। तो यहाँ पे जो स्पीच है, दिस वर्ड इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिबर्टी के साथ कौन सा वर्ड नहीं यूज़ किया गया है, दिस इज़ द स्पीच, ठीक है। आंसर बी इज़ करेक्ट हियर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर 10th and last question. In preamble of the constitution, the word socialist was added by. ये क्वेश्चन आप सोचेंगे कि पहले भी पूछा जा चुका है, पर नहीं, यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट के साथ सेक्शंस भी मेंशन है कि किस सेक्शन के द्वारा ये वर्ड ऐड किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन हियर इज सेक्शन 2 ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट, सेकंड ऑप्शन हियर इज सेक्शन 3 ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट, थर्ड ऑप्शन हियर इज सेक्शन 4 ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट एंड फोर्थ ऑप्शन हियर इज सेक्शन 5 ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ पे जो आंसर है हमारा वो ए है। करेक्ट आंसर यही है कि सोशलिस्ट वर्ड सेक्शन 2 ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट के साथ ऐड किया गया था। तो ये हमें बस याद कर लेना है क्योंकि दिस इज़ द डायरेक्ट क्वेश्चन, ऑब्वियसली देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। सेक्शन 2 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के ये वर्ड मेंशन है। नाउ देयर इज़ वन क्विज क्वेश्चन, ये मैंने आप लोगों के लिए रखा है और ये क्विज क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका आंसर आपको प्रीवियस वीडियो में भी मिल सकता है अगर आपने ध्यान से वो वीडियो सुना होगा, और नहीं तो आप इसको अलग से भी पढ़ के बुक्स में या कहीं से भी खोज सकते हैं। तो नाउ यू विल हैव टू टेल मी विच ऑप्शन इज़ करेक्ट इन दिस क्वेश्चन एंड देन आई विल tell you the correct answer in the next video. So word sovereign has been taken from which constitution? जो sovereign word है, this is one of the key words. तो ये हमने किस constitution से borrow किया है या किस constitution से लिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन हियर इज आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड ऑप्शन इज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड ऑप्शन यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, फोर्थ ऑप्शन इज फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो आपको जो भी राइट आंसर इसका लगता है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड I hope you like this video, so please do like, comment and subscribe our channel, and till the next video, be safe and study hard. Thank you.